हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 6, HTML5, फॉर्म, मल्टीमीडिया एंड CSS। तो बच्चों, HTML क्या होता है? HTML, Hypertext Markup Language, is a language in which we can make web pages on the internet and view them using a web browser। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या करता है? ये वेब पेज बनाने के काम आता है जो कि इंटरनेट पर होते हैं। HTML documents are made up of text content and special codes known as tags। तो जो HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टैग्स के थ्रू बनाए जाते हैं that tell web browsers how to display the content. In our previous class, we have learned about creating, formatting, linking, and adding images and tables in web pages using HTML5 language. In this chapter, we will move on. In this chapter, we will move ahead and learn more about HTML5, like adding forms, multimedia, and CSS to web pages. तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि HTML फाइल में हम फॉर्म्स कैसे ऐड करते हैं, मल्टीमीडिया और CSS कैसे ऐड करते हैं अपने वेब पेजेस में। सबसे पहले आता है इनपुट कंट्रोल। An input control is a type of input mechanism on a form. A form may contain several different types of input controls classified as data or text इनपुट कंट्रोल्स। तो इनपुट कंट्रोल एक इनपुट मैकेनिज्म है फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म में सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि डेटा और टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। अब आता है डेटा इनपुट कंट्रोल। A data input control can be a radio button, a checkbox, a submit button, a reset button and or a selection menu। तो जो डेटा इनपुट कंट्रोल है वो एक रेडियो बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, सबमिट बटन हो सकता है, रीसेट बटन हो सकता है या फिर सिलेक्शन मेन्यू हो सकता है। A text input control allows the user to enter text through a text box, text for small amount of text area for large amount of text and or a password text box, password for entering a password। तो जो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड किया जाता है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट लेता है, एक टेक्स्ट एरिया बॉक्स होता है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट लेता है और एक पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें पासवर्ड एंटर करते हैं। A text control creates a text box that is used for a single line of input. The text control has two attributes. Text control के पास two attributes होते हैं, size जो कि क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, और दूसरा क्या होता है, मैक्स लेंथ जो क्या स्पेसिफाई करता है कि मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है स्टूडेंट्स। A password control also creates a text box. A password control also creates a text box used for single line of input, except that the characters entered into the field can appear as asterisks or bullets। A password text box hold the password entered by the visitor। password text box होता है, उसमें पासवर्ड डाला जाता है जो कि विजिटर डालता है। अब आता है रेडियो कंट्रोल। ये क्या होता है? अ रेडियो कंट्रोल लिमिट्स द वेब पेज विजिटर टू ओनली वन चॉइस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस। Each choice is preceded by a radio or option button which typically appears as a circle। फिर आता है a checkbox controls allows a web page visitor to select more than one choice from a list of choices। checkbox क्या करता है? checkbox एक लिस्ट ऑफ चॉइसेस में से कितनी चॉइसेस हमें चूज करनी है वो सारी चूज करने में हेल्प करता है, मतलब हमें अलाउ करता है वो। Each choice in a checkbox list can be either on or off।
जो चॉइसेस हैं या तो हम उसे ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल चेक बॉक्सेस आर डीसिलेक्टेड। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास चेक बॉक्सेस आते हैं वो क्या होते हैं, डीसिलेक्टेड होते हैं। अ सिलेक्ट कंट्रोल क्रिएट्स अ सिलेक्शन मेन्यू। A select control creates a selection menu from which the visitor selects one or more choices. This prevents the visitor from having to type information into a text or text area field. इसके बाद आता है text area control. A text area control creates a field that allows multiple lines of input. text area control क्या allow करता है, ये एक field बनाता है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम उसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट डाल सकें। टेक्स्ट एरिया fields are useful when detailed input is required from a desired by a web page visitor. The submit button sends the information to the appropriate location for processing. A web page form must include a submit button. तो हमारा जो फॉर्म्स होते हैं उसमें एंड में एक सबमिट बटन होता है। तो वो क्या होता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ चली जाती है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, मतलब जो उसकी एप्रोप्रिएट लोकेशन हो जाती है वहां पे चली जाती है। अब एक रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन का क्या काम होता है, ये हमारे जो इनपुट होता है उसको क्लियर कर देता है और हमारा जो फॉर्म है वो फिर से न्यू हो जाता है। अब आता है क्रिएटिंग फॉर्म्स। हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं, वी कैन यूज फॉर्म्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो फॉर्म हम बनाते हैं ताकि हम जो लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ले सकें और जो कि हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं उन लोगों की इंफॉर्मेशन ले सकें। फॉर्म क्या होता है, उसके पास इनपुट फील्ड्स होती है फॉर यूजर्स टू एंटर इंफॉर्मेशन एंड लिमिट चॉइसेस टू वैलिड options to avoid incorrect data entry. Forms provide an easy way to collect required information. जो वेब पेज फॉर्म होते हैं उनके 3 important parts होते हैं। पहला आता है फॉर्म टैग, दूसरा होता है फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स और थर्ड होता है सबमिट बटन। While designing a form we write HTML। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं। To define the different object that allows user to type or select information. These objects can include text field। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, टेक्स्ट फील्ड होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं और ऑप्शंस होते हैं। All forms should include a submit button। हर फॉर्म के पास उसका एक सबमिट बटन होता है for sending the data to a web server for processing। अब फॉर्म को कैसे सेटअप करते हैं, we must set up a form before adding any information to it. To set up a form we need to specify 2 important information, that is method and action property of form tag। तो method property क्या बोलती है, method property tells the form how to transfer the data to the form processor। ये बताता है कि जो फॉर्म है वो कैसे ट्रांसफर होगा फॉर्म प्रोसेसर के पास, which is our CGI script और our email addresses। तो फॉर्म प्रोसेसर क्या है, CGI script और हमारे जो email address हैं। We can assign either of the 2 values to the method property. First is get। If the method property of form is set to get, then the data is in the form is given to the form processor in the form of an environment variable query string। If no method property is given to form tag, अगर कोई property नहीं दी जाती है form tag को, तो by default जो property होती है वो क्या होती है, get होती है। Next होता है post। If the method property of form is set to post, अगर post पे हमारा property set होती है, then the data is in the form is given to the form processor as a standard input to the program. Action property of the form tag tells what action the form should take when the user press the submit button। action property क्या कहता है, जब हम submit button को click करते हैं तो तब क्या action perform किए जाएंगे वो action property बताता है। Follow the steps to set up a form। फॉर्म सेटअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टाइप करेंगे फॉर्म मेथड जो कि पोस्ट फॉर द फॉर्म टू अपीयर ऑन द वेब पेज, देन प्रेस स्पेस बार की। इसके बाद क्या प्रेस करना है, स्पेस बार की प्रेस करना है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद आप टाइप करेंगे एक्शन
replacing with the location of our CGI script on our web server that will process the information submitted by our form. Next, आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं. We like to get the information to our email address. Type action. Mail to replacing with our email address. If we want to receive the information as text in our email, type enc type, which is text plain in the form. Type /form to complete the form. इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं? We can create a text box that allows the readers to enter a line of text. टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं? एक टेक्स्ट की एक लाइन लिख सकते हैं. टेक्स्ट बॉक्सेस आर यूज फॉर एंटरिंग नेम्स एंड एड्रेसेस. तो टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्यों यूज होता है? नेम्स एंटर करने के लिए और एड्रेस ऐड करने के लिए. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले हम फॉर्म टैग लगाएंगे और एंड में हम क्या लगाएंगे? फॉर्म /फॉर्म. ठीक है, तो इसके बीच में हम क्या टाइप करेंगे? टाइप द टेक्स्ट टू अपीयर बिसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, देन प्रेस स्पेस बार की. उसके बाद हम क्या करेंगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये ऐड करेंगे और फिर क्या प्रेस करेंगे? हम स्पेस बार की प्रेस करेंगे. उसके बाद हम टाइप करेंगे नेम replacing the question mark with the word that describes a text box. तो ये टाइप करके क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या ऐड करेंगे? नेम ऐड करेंगे जो कि उस टेक्स्ट बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा होगा. उसके बाद क्या एंटर करेंगे? उसके बाद हम क्या प्रेस करेंगे? स्पेस बार की. नेक्स्ट, टू डिफाइन द width of the text box, type size question mark replacing the question mark with the width to use for the text box. तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे? साइज के अंदर हम डालेंगे width, जो कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स की width को स्पेसिफाई करेगा. If we need to define the maximum number of characters that visitor can enter in a text box, type max length replacing the question mark with the maximum number of characters. के बाद हम क्या टाइप करेंगे? ये वाला सिंबल लगाएंगे जिससे हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कंप्लीट होगा. तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो वेब ब्राउजर है वो कुछ इस टाइप से हमारा टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा. यहाँ पे एक फैक्ट आता है स्टूडेंट्स. A default text value appears in the text box when the user views the form. We can use default values to display instructions about the type of data required. Give users an example of the data we are looking for, or show a popular choice or response. To specify a default, we can add the value attribute to the input. For example, input type text, name, email, value, enter your email address. तो वैल्यू ऐड करके हम क्या ऐड कर सकते हैं? वो लाइन जो कि हमें शो हो अपने टेक्स्ट बॉक्स से पहले. अब आता है क्रिएटिंग अ पासवर्ड बॉक्स. एक पासवर्ड बॉक्स कैसे बनाते हैं? वी कैन क्रिएट अ पासवर्ड बॉक्स. हम पासवर्ड बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि क्या अलाउ करेगा रीडर्स को? कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन डालने के लिए, जैसे कि हो गया क्रेडिट कार्ड का नंबर या फिर कोई पासवर्ड. It differs from standard text box in a manner that when a user types it in any character. तो ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स से कैसे अलग है? जब हमारा यूजर कोई भी कैरेक्टर टाइप करेगा तो वो एस्ट्रिक की फॉर्म में हमें दिखाई देगा या फिर बुलेट की फॉर्म में हमें शो होगा. अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके पासवर्ड बॉक्स बना सकते हैं. सबसे पहले हमारे जो फॉर्म टैग्स हैं उनके अंदर हम क्या टाइप करेंगे? टाइप द टेक्स्ट टू अपीयर बिसाइड द पासवर्ड बॉक्स एंड देन प्रेस स्पेस बार की. हम सबसे पहले वो ऐड करेंगे, वो टेक्स्ट लिखेंगे जो कि हम चाहते हैं हमारे जो पासवर्ड बॉक्स है उसके साथ में आए. ठीक है, इसके बाद हम टाइप करेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड और फिर हम स्पेस बार की को फिर से प्रेस करेंगे. इसके बाद हम टाइप करेंगे नेम, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देंगे word that describes the password box and then press the space bar key. हम वो वर्ड डालेंगे जो कि हमारे पासवर्ड बॉक्स को डिस्क्राइब करेगा. फिर इसके बाद अगर हमें विथ हमारी डिफाइन करनी है तो हम क्या लिखेंगे? टाइप करेंगे साइज
जिसमें हम क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देंगे विथ से, जो कि हमारा साइज को बताएगा, हमारी विथ, हमारे पासवर्ड बॉक्स के विथ को बताएगा. To define the maximum number of characters that a visitor can enter in a password box, max length हम डालेंगे, जो कि क्या डिफाइन करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी एंटर. तो कितना लंबा पासवर्ड हम डाल सकते हैं वो हमारा को क्या डिस्क्राइब करेगा, मैक्स लेंथ. तो इसमें हम अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर करेंगे. उसके बाद हम टाइप करेंगे टू कंप्लीट द टेक्स्ट बॉक्स. तो आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हमारा पासवर्ड बॉक्स होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें. When a user characters in the password box, a bullet or an asterisk appears for each character in the password box or on screen. अब आता है creating a large text area. अगर आपको एक large text area बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे? We can create a large text area that allows the visitors to enter several lines of text. तो लार्ज टेक्स्ट एरिया क्या काम आता है, जब हमें ज्यादा टेक्स्ट एंटर करना हो तब हम एक लार्ज टेक्स्ट एरिया बनाते हैं. ये जनरली यूज किया जाता है कमेंट्स लेने के लिए या फिर फीडबैक लेने के लिए. अगर हमें विजिटर्स का कमेंट या फीडबैक लेना हो तब हम इसे ऐड करते हैं. तो अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके एक लार्ज टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं. तो फॉर्म टैग के बीच में हम सबसे पहले टाइप करेंगे जो कि हम चाहते हैं हमारा जो टेक्स्ट लार्ज टेक्स्ट बॉक्स है उसके साइड में हमें दिखे. उसके बाद हम स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, फिर हम टाइप करेंगे टेक्स्ट एरिया और फिर से हम स्पेस बार की प्रेस करेंगे. देन हम एंटर करेंगे नेम, और जिसमें हम ये क्वेश्चन मार्क को नेम से रिप्लेस करेंगे. उसके बाद हम एक फिर से स्पेस बार की को प्रेस करेंगे. देन हम टाइप करेंगे रोज, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क को फिर से नंबर ऑफ रोज से रिप्लेस करेंगे और स्पेस बार की एंटर करेंगे. फिर हम टाइप करेंगे कॉल्स, रिप्लेसिंग क्वेश्चन मार्क विद द विथ फॉर द टेक्स्ट एरिया. देन प्रेस द स्पेस बार की. इसके बाद फिर हम टाइप करेंगे रैप. रैप क्या करेगा, वी वांट टू नो if we want to have the text that visitor type automatically wrapped within the text area. wrap क्या हेल्प करता है कि जो हमारा यूजर टेक्स्ट डालेगा वो उस बॉक्स के अंदर ही, टेक्स्ट एरिया जो है उसके अंदर ही रैप हो जाए, बाहर ना निकले. अब आता है टाइप स्लैश टेक्स्ट एरिया टू कंप्लीट द टेक्स्ट एरिया. एंड स्टेप 4 इफ वी डू नॉट वांट अदर चेक बॉक्स टू बी सिलेक्टेड. तो जब आप इसे रन करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरीके से शो होगा. अब आता है क्रिएटिंग चेक बॉक्सेस. आप चेक बॉक्सेस कैसे बना सकते हैं? वी कैन इंक्लूड चेक बॉक्सेस इन अ फॉर्म इफ वी वांट visitor to select one or more options. While creating check boxes we need to specify the following information. तो हमारे फॉर्म में चेक बॉक्सेस ऐड किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे फॉर्म में हॉबीज है तो हम हॉबीज को चेक बॉक्स में शो कर सकते हैं और उसे टिक कर सकते हैं. Word that describes the group of checkboxes by using the name attribute. A word that describes each checkbox by using the value attribute. Text to appear beside each checkbox on the web page. अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं. तो फॉर्म टैग के अंदर हम टाइप करेंगे इनपुट टाइप चेकबॉक्स और फिर स्पेस बार की को प्रेस करेंगे. फिर हम टाइप करेंगे नेम और रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क को उस वर्ड के साथ जो कि हमारे चेक बॉक्स को डिस्क्राइब करेगा. देन हम टाइप करेंगे टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन फॉर वन चेक बॉक्स वी विल टाइप वैल्यू और रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द चेक बॉक्स. इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे. टू सिलेक्ट द चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली प्रेस द स्पेस बार की एंड देन टाइप चेक्ड. देन हम टाइप करेंगे ये वाला सिंबल जो कि हमारे चेक बॉक्स को कंप्लीट करेगा. टाइप द टेक्स्ट टू अपीयर बिसाइड द चेक बॉक्स ऑन द वेब पेज. फिर हम रिपीट करेंगे स्टेप्स 1 to 6 फॉर ईच चेक बॉक्स टू क्रिएट एंड स्किप स्टेप 4 टू अवॉइड अदर चेक बॉक्सेस. तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे चेक बॉक्सेस कुछ इस तरीके से शो होंगे. नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग रेडियो बटन्स. रेडियो बटन्स कैसे बना सकते हैं? We can include radio buttons in a form if we want visitors to select any
only one of the several options. While creating radio buttons, we need to specify the following information. Radio buttons वो होते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाए, तब हम रेडियो बटन्स को यूज करते हैं. A word that describes each radio button by using the value attributes or text to appear beside each radio button on the web page. अब आता है इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक रेडियो बटन बना सकते हैं. तो फॉर्म टैग के अंदर हम क्या टाइप करेंगे, इनपुट टाइप रेडियो और स्पेस बार की प्रेस करेंगे. देन हम टाइप करेंगे नेम और एक वर्ड देंगे जो कि हमारा डिस्क्राइब करेगा रेडियो बटन को, और फिर से स्पेस बार की प्रेस करेंगे. फिर उसके बाद हम टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन फॉर वन रेडियो बटन टाइप वैल्यू, फिर हम वैल्यू टाइप करेंगे और रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब द रेडियो बटन. Now to select the radio button automatically, press the space bar key and then type checked. Next we will type this symbol, इसको हम टाइप करेंगे और अपने रेडियो बटन को कंप्लीट करेंगे. Next type the text to appear beside the radio button on the web page. Next फिर हम steps 1 to 6 को रिपीट करेंगे फॉर ईच रेडियो बटन टू क्रिएट. तो जब आप इसे रन करेंगे तो हमें रेडियो बटन्स कुछ इस टाइप से शो होंगे. अब आता है क्रिएटिंग अ सबमिट बटन. हम सबमिट बटन कैसे बनाएंगे? वी कैन क्रिएट अ सबमिट बटन दैट विजिटर्स कैन क्लिक टू सेंड द इंफॉर्मेशन दे एंटर्ड इन आवर फॉर्म टू आवर वेब सर्वर और आवर ईमेल. तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो सबमिट बटन होता है वो क्यों बनाया जाता है, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने एंटर करी है वो सर्वर के पास जा सके. तो सबमिट बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग में इनपुट टाइप सबमिट ऐड करेंगे और स्पेस बार की को प्रेस करेंगे. उसके बाद हम वैल्यू टाइप करेंगे और टेक्स्ट देंगे जो कि अपीयर होगी सबमिट बटन पे. फिर द वेब ब्राउजर डिस्प्लेज द सबमिट बटन. When the user clicks the submit button, the data in the form is processed and sent to the destination specified in the form tag. तो आप इस इमेज में देख सकते हैं सबमिट बटन कुछ इस टाइप से हमें शो होगा. अब आता है बच्चों क्रिएटिंग अ रीसेट बटन. हम रीसेट बटन को कैसे बनाएंगे? We can create a reset button that visitors can click to clear the information they entered in our form. तो अगर यूजर्स को अपनी एंटर की हुई इंफॉर्मेशन को क्लियर करना है दोबारा से, तो रीसेट बटन बनाया जाता है. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक रीसेट बटन बना सकते हैं. तो हम फॉर्म टैग के बीच में टाइप करेंगे इनपुट टाइप रीसेट और स्पेस बार की प्रेस करेंगे. देन हम वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू टाइप करेंगे और टेक्स्ट देंगे जो कि रीसेट बटन पे अपीयर हो. उसके बाद द वेब ब्राउजर डिस्प्लेज द रीसेट बटन. तो हमारा जो वेब ब्राउजर होगा वो हमें रीसेट बटन कुछ इस टाइप से शो करेगा. When the user clicks the reset button, the form is reset to its original setting. अब आता है adding multimedia. Multimedia कैसे add करते हैं? Multimedia elements can be added into HTML pages to illustrate a product or service or simply for aesthetic purpose. We can deliver multimedia files to website visitors in several ways. Whenever possible, we should use small files as large files take a long time to transfer to a computer. HTML5 features include native audio and video support without the need for Flash player. The HTML5 audio and video tags make it simple to add media to a website. We need to set src attribute to identify the media source and include controls attributes so the user can play and pause the media. तो हम HTML फॉर्म में या फिर HTML में हम HTML5 के फीचर्स से हम ऑडियोज और वीडियोस को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में. बाय यूजिंग ऑडियो टैग और वीडियो टैग हम अपने जो ऑडियो और वीडियो है उसको ऐड कर सकते हैं. अब आता है कि एम्बेडिंग ऑडियो को कैसे ऐड करेंगे. HTML5 supports audio tag which is used to embed sound content in an HTML document. तो हम सबसे पहले करेंगे टाइप करेंगे ऑडियो SRC जिसमें हम रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क विद द लोकेशन और द नेम ऑफ द साउंड फाइल. तो जो साउंड फाइल की लोकेशन है और जो नेम है
उससे उसको रिप्लेस करेंगे। देन हम एंटर करेंगे स्पेस बार की और टाइप करेंगे ऑटो प्ले कंट्रोल्स। इसके बाद हम टाइप करेंगे स्लैश ऑडियो। The web browser displays the music control and start playing the audio song as we have given audio autoplay option. In some browsers we need to click on play button to start the audio. तो हमारे जो वेब ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऑडियो को प्ले कर देगा क्योंकि हमने ऊपर ऑटो प्ले कंट्रोल दिया है। कुछ ब्राउजर्स में क्या होता है कि हमें प्ले बटन को पहले क्लिक करना होता है स्टार्ट करने से पहले। आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब आता है एम्बेडिंग वीडियोस। वीडियोस को कैसे ऐड करते हैं? HTML5 supports video tag which is used to embed content in an HTML document. तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे वीडियो src replacing the question mark with the location और name of the video file. देन हम ऐड करेंगे with, फिर हम एक स्पेस बार की प्रेस करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे height और फिर से हम स्पेस बार की को प्रेस करेंगे। फिर हम उसको ऑटो प्ले कंट्रोल देंगे और लास्ट में वी विल ऐड द टैग स्लैश वीडियो। तो जो हमारा वेब ब्राउजर होगा वो वीडियो को डिस्प्ले करेगा और ऑटोमेटिकली प्ले करने लगेगा। कुछ ब्राउजर्स में क्या होता है हमें पहले प्ले बटन को प्रेस करना होता है जब हमारी वीडियोस क्या होती हैं प्ले होती हैं। अब आता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स विच इज CSS। तो ये क्या होता है बच्चों? In HTML, we use tags to alter the style of a web page. Altering the style of individual elements on a web page is an easy web development technique to use. With large website, however, it is better to use cascading style sheets to change the style of an web page elements. With CSS, we write code that allows us to control an element within a single web page or throughout an entire website. For example, changing a heading color in a website that contains multiple pages is much easier to do using a CSS instead of changing the individual heading. तो CSS क्या होता है बच्चों? जब हम अपने HTML के थ्रू अपना कंटेंट डालते हैं तो हम CSS को यूज करके उसे स्टाइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक हेडिंग टाइप करी है और उस हेडिंग का हमें कलर चेंज करना है या फिर साइज चेंज करना है तो हम CSS के थ्रू उसे चेंज करते हैं। फैक्ट फोल्डर यहाँ पे एक आता है बच्चों। द ऑडियो टैग सपोर्ट्स द फाइल फॉर्मेट्स WAV, MP3 एंड OGG, while the video tag supports MP4, WebM and OGG. A style sheet is usually a text file that is separate from our HTML document. It can also be internal. Residing within our HTML code, which holds formatting codes that control our web page appearance. तो जो हमारी स्टाइल शीट होती है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट से अलग बनाई जाती है या फिर ये इंटरनली भी डाली जा सकती है हमारे HTML कोड्स के साथ। We can use style sheet to change the look of any web page element such as हम स्टाइल शीट्स का यूज करके अपनी वेब पेजेस का जो लुक होता है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ्स, लिस्ट, बैकग्राउंड। तो whenever we need to apply the formatting from an external style sheet to an HTML document, we can attach the style sheet to the page using link tag. तो जब हम फॉर्मेटिंग जो करते हैं अपनी CSS की वो दूसरे पेज पे करते हैं तो हमें एक लिंक टैग का यूज करना होता है जिससे हमारी जो शीट्स है वो अटैच हो जाए। जो स्टाइल शीट होती है उसके बाद .css फाइल का एक्सटेंशन होता है। We can link every page in our website to a single style sheet. हम हर पेज को लिंक कर सकते हैं सिंगल स्टाइल शीट के साथ। Any changes made to the style sheet formatting are reflected in every HTML document linked to the sheet. By storing all the formatting information in one place, we can easily update the appearance of the web pages of our site in one single action. Style sheets are made up of rules and each rule has two distinct parts. तो जो style sheets होती हैं rules से बनी होती हैं, जैसे कि और जो हर रूल होता है उसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सिलेक्टर और दूसरा होता है डिक्लेरेशन।
जो सिलेक्टर होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है, दैट द एलिमेंट टू विच वी वांट टू अप्लाई अ स्टाइल रूल एंड द डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द फॉर्मेटिंग फॉर द सिलेक्टर। जो सिलेक्टर होता है वो स्पेसिफाई करता है कि जो एलिमेंट है जिसपे हम चाहते हैं कि स्टाइल हो, और जो डिक्लेरेशन होता है वो स्पेसिफाई करता है सिलेक्टर का फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टाइल rule H2 color red, the selector is H2 and color is red is the declaration। तो आप इसमें देख सकते हैं जो H2 है which is heading 2 वो क्या है, एक सिलेक्टर है, और जो कलर है, कलर रेड है, वो क्या है, डेक्लेरेशन है। उसमें हमने उसको डेक्लेयर करा है कि जो कलर होगा वो रेड होगा। When applied to a page, this rule will make all level 2 headings appear in red। अब आता है inline, internal and external style sheets। We can connect an HTML document to an inline, internal and external style sheet। It uses the style attribute of an HTML element। ये style attribute को use करता है। Example हो गया जैसे H1 style color green। It sets the text color of the H1 element to green। अब आता है इंटरनल स्टाइल शीट्स। इसमें क्या होता है, ये HTML पेज के अंदर ही होता है, बट ये किसके बिटवीन होता है, हेड और स्लैश हेड टैग्स के बीच में होता है। और जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है वो एक सेपरेट फाइल को यूज करते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर यूजफुल व्हेन वी लिंक देम टू मोर देन वन HTML डॉक्यूमेंट। अब आता है इंटरनल स्टाइल शीट। एन इंटरनल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। हमने जैसे ऊपर पढ़ा, जो इंटरनल स्टाइल शीट होता है वो क्यों यूज होता है, जब हम एक सिंगल HTML पेज की स्टाइल को डिफाइन करना हो तब यूज होता है। वी कैन क्रिएट एन इंटरनल स्टाइल शीट दैट रिजाइड्स विद इन द हेड टैग्स ऑफ HTML document। The styles of an internal style sheet are defined by style and / style tags and apply only to the HTML in that document। अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके स्टाइल टैग को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेब पेज पे स्टाइल टैग लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, और हेड और / हेड टैग के बीच में। उसके बाद हम टाइप करेंगे अ टैग टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर, जैसे कि वी कैन डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर टैग सच एज H1 हेडिंग, P फॉर पैराग्राफ्स और B फॉर बोल्ड टेक्स्ट। उसके बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट टाइप करेंगे, देन उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे टैग के, और फिर उस टैग को क्लोज कर देंगे। एंटर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द टैग बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट्स, अ सेमीकोलन मस्ट सेपरेट ईच कैरेक्टरिस्टिक। तो हर कैरेक्टरिस्टिक जो होगा एक सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट किया जाएगा। इसके बाद हम स्टेप्स 2 to 4 को रिपीट करेंगे हर टैग के लिए, और फिर टाइप कर देंगे /style, ताकि जो हमारा स्टाइल शीट है वो कंप्लीट हो जाए। अब आता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। वी कैन यूज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट टू डिफाइन फॉर्मेटिंग एंड लेआउट इंस्ट्रक्शंस एंड देन लिंक इट टू द मोर देन वन HTML डॉक्यूमेंट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट एक एक्सटर्नल पेज पे बनाई जाती है, जो कि फिर हम लिंक कर सकते हैं मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स के साथ। We can save the style sheet as a text file and assign the .css file extension। We can link to a style sheet to assign a set of formatting rules to HTML document। We can also link multiple documents to the same style sheet to give all the pages in a site a consistent look। The link tag is used, तो link tag को use करके जो CSS का पेज होता है वो लिंक किया जाता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक स्टाइल शीट सेटअप कर सकते हैं मल्टीपल वेब पेजेस के लिए। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे टेक्स्ट एडिटर में। उसके बाद हम स्टेप्स 2 to 5 को परफॉर्म करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे,
फिर हम क्लिक करेंगे सेव पे, या फिर हम सीधा कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। फिर एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने। हम नेविगेट करेंगे फोल्डर को जो कि हमारी HTML फाइल्स कंटेन करता है। उसके बाद हम टाइप करेंगे एक यूनिक फाइल नेम अपनी स्टाइल शीट के लिए, और उसमें .css एक्सटेंशन लगाएंगे। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव गिवन द नेम एज स्टाइल शीट .css। तो आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो फाइल सेव की गई है वो स्टाइल शीट .css के नाम से की गई है। फिर अब हम सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन है जो कि आप खुद से बनाने का ट्राई करना। अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके लिंक को ऐड कर सकते हैं स्टाइल शीट से। सबसे पहले हम टाइप करेंगे लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट /CSS बिटवीन हेड और स्लैश हेड। तो इन टैग के बीच में हम ये टाइप करेंगे। फिर अब हम स्पेस बार की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे HREF, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेंगे नेम और लोकेशन से, जो स्टाइल शीट का नेम और लोकेशन है। उसके बाद जो वेब ब्राउजर होगा वो डिस्प्ले कर देगा स्टाइल जो कि स्पेसिफाई की गई है वेब पेज के लिए। अब आता है इंडेंटिंग टेक्स्ट थ्रू CSS। एंड इंडेंट इज द स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द टेक्स्ट। इंडेंट क्या होता है? ये स्पेस होता है मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का। The indent feature is often used to set a first line indent for paragraphs. We can indent the first line of all the paragraphs of the text on our web page that use the text indent property in style sheet. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इंडेंट कर सकते हैं टेक्स्ट को थ्रू CSS। To indent the first line of all the paragraphs of the text that uses a specific tag, position the cursor between the brackets for the tag. इसके बाद हम क्या टाइप करेंगे? टेक्स्ट इंडेंट, और फिर स्पेस बार की को प्रेस करेंगे। देन हम टाइप करेंगे अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द इंडेंट as a percentage of the window, for example 20% or 30%, और in pixels example हो गया 20 pixel और 30 pixel. The first line of all the paragraphs in the text that uses the tag is indented by the web browser. अब आता है changing margin through CSS. Margin is the amount of space that appears around an element. Margin क्या होता है? एक element के around कितना space होगा वो margin होता है. It can be set for any web page element with the margin property which can accept 4 values for the top, right, bottom, left. तो जो margin होता है वो 4 values accept करता है top, right, bottom और left edges. We can include 2 values as an alternative to 4 values. These 2 values set up the top and bottom margins to the first value and the right and left margins to the second value. The value can be measured in pixel or as percentage of the window. अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके मार्जिन को, तो मार्जिन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स में ऐड करेंगे। हम टाइप करेंगे मार्जिन, जिसको तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको हम रिप्लेस कर देंगे जहां पे हम मार्जिन देना चाहते हैं उससे। फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट में देना चाहते हैं, राइट में देना चाहते हैं, टॉप में या फिर बॉटम में देना चाहते हैं। फिर हम प्रेस करेंगे स्पेस बार की। उसके बाद हम टाइप करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ स्पेस हम देना चाहते हैं और किसमें टाइप करेंगे पिक्सल में। फॉर एग्जांपल अगर हम 40 पिक्सल का देना चाहते हैं तो हम 40 px टाइप करेंगे। तो every element that uses the tag with the margin specified is displayed in the web browser. अब आता है changing margin using div tag. इससे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप खुद से ट्राई करना एक बार। अब आता है changing margin using div tag. If 3 values are included, the top edge gets the first value, the left and the right edges get the second value, and the bottom edges get the third value. If only one value is listed for the margin property, this value is applied equally to all 4 edges.
तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अब अपना मार्जिन जो है उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग div टैग। तो ऐड करेंगे हम सबसे पहले मार्जिन स्टाइल प्रॉपर्टी इन div और कर्ली ब्रैकेट ओपन। सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी बाय असाइनिंग वैल्यूज टू टॉप राइट बॉटम लेफ्ट मार्जिन। तो उसके बाद हम अपनी वैल्यूज सेट करेंगे, फिर हम टाइप करेंगे div in front of the text to display as a margin, and लास्ट में हम टाइप करेंगे /div after the text to display as margin। तो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं द फर्स्ट पैराग्राफ नाउ हैज मार्जिन्स ऑन ईच। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है इसके लेफ्ट और राइट साइड क्या आ गया है, स्पेस आ गया है। अब यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर की समरी है, आप इसे रीड करना और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।